Welcome everybody. This is our fourth class in JEE Mains previous year question series for chapter Laws of Motion, class 11th. Before this, we have made three videos in this series and videos for previous chapters also, like first, second, and third chapter for class 11, unit and dimension, motion in straight line, and motion in a plane. And all of those videos are available in our playlist on our channel. Name of channel is Point Basics, and name of the playlist is JEE Main Previous Year Questions. We have also made similar series for NEET previous year questions, so you can also check that playlist on our YouTube channel. And if you find these videos useful, then do like, share, and subscribe to our channel. Share this video as much as possible. It helps a lot to grow us. And if you have any comments or suggestion, you can put them in comment section. And if you can do some donations, then you can scan these QR codes. With the help of these funds, we will be able to get you new books, new question papers, and a better computer hardware so that we can provide you good video qualities. So with this, let's start today's video. I think we have covered up to question number 45 or something. Yes. So this was our last question number 45. And today we are going to start from question number 46. So here it is mentioned a body of mass 2 kg slides down with an acceleration of 3 meter per second square. So downward acceleration is given on a rough inclined plane having slope of 30 degree. External force required to take the same body up the plane with the same acceleration. So पहले body नीचे की तरफ आ रही है. So let us draw. Now on body, let us give it some rotation. So here it is, ये body है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है. सो 30 डिग्री. अब इसका डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा. और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा दो की होगा F ऑफ R. तो अगर बॉडी पे नेट फोर्स देखें हम F नेट तो वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स. और हमने यहाँ पे mg sin थीटा को ग्रेटर क्यों लिया? बिकॉज ये मेंशन है दैट जो बॉडी है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है और रफ इंक्लाइंड है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी है. सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू और विल बी म्यू mg cos थीटा. सो F net will be mg sin theta minus mu times mg cos थीटा. और अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें मीन्स दोनों साइड को मास से डिवाइड कर देंगे. सो एक्सेलरेशन आ जाएगा g of sin theta. Sin is 30. So sin 30 will be half minus mu times g times cos 30 will be √3/2. और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 3. g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है. सो 3/10 g को हम कॉमन लेके इधर ले आएंगे इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लेंगे 1 minus mu by √3 and from here it will be 0.6. 0.6 is equal to 1 minus mu √3 और यहाँ से हमारे पास आ जाता है mu √3 is equal to 0.4 and mu is 0.4 by √3. So हमारे पास mu की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. नाउ
external force required to take the same body up with the plane with the same acceleration. Now अब अगर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है हमें, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, जो अभी ऊपर की तरफ लग रहा था, जब बॉडी आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ मूव करेगा, तो ये सेम फ्रिक्शनल फोर्स यहां से हट जाएगा। लेट मी, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अब कहां पे लगेगा, बैकवर्ड लगेगा। एंड नाउ अब ये बोला गया है कि आपको इस केस में सिनेरियो में अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए। तो इस सिनेरियो में अगर आपको अपवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए, मींस आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज दैट फोर्स इज F। सो इन दिस सिनेरियो आपको सेम एक्सेलरेशन चाहिए ऊपर की तरफ, जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो m टाइम्स 3 इक्वल्स टू F माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा। और हम दोनों साइड्स अगर m से डिवाइड कर दें, और बिकॉज हमें f की वैल्यू निकालनी है तो हम m से डिवाइड नहीं करते, तो यहाँ से f आ जाएगा हमारे पास, सिंपली इट विल बी 3m प्लस mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा। नाउ हमें पता है m की वैल्यू कितनी है, 2 kg। सो 3 into 2 6, ये 20 of sin 30 प्लस म्यू इज 4 by 10 into root 3, हमने 0.4 को 4 by 10 लिख दिया। mg is 20 and cos 30 is root 3 by 2। आप इनको कैंसिल करोगे, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव अस 10। सो 6 plus 10 plus 4, और ये हमें देगा 20 न्यूटन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। A rocket is fired vertically from the earth with an acceleration of 2g, sorry, not 2 gram, where g is gravitational acceleration on the inclined plane inside the rocket, making an angle theta with horizontal. The point object of mass m is kept. The minimum coefficient of friction mu minimum between the mass and the inclined surface such that mass do not move। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सपोज एक रॉकेट है, ये सपोज एक आपके पास रैंडम शेप का रॉकेट है और उसमें एक इंक्लाइन प्लेन है और उसका इंक्लिनेशन सपोज थीटा है। नाउ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है मास का, और ये बताना है कि म्यू मिनिमम कितना हो सो दैट मास डज नॉट मूव, कि मास मूव ना करे और नीचे की तरफ ना जाए। तो जो इसका mg है वो ऐसे एक्ट करेगा, और जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, और ये कंपोनेंट होगा फ्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन बैलेंस कर लेता है सिस्टम को, फ्रिक्शन अगर mg साइन थीटा को बैलेंस कर लेता है, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे नो प्रॉब्लम। तो और आपने अगर थ्योरी में किया है दैट फॉर नो मोशन, कि जब स्लाइडिंग नहीं होगी तो उस स्लाइडिंग पे म्यू की वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर होगा। ये तो था हमारा नॉर्मल, उससे नॉर्मल कंसेप्ट से। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से भी सेपरेटली सॉल्व करें, तो बिकॉज जो आपका रॉकेट है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड कितना है, 2g है, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, 2g है। तो ये सेम एक्सेलरेशन किस पे लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स आ जाएगा डाउनवर्ड, दैट विल बी 2 ऑफ mg। सो नाउ अब अगर हम कंपोनेंट्स रिजोल्व करें, तो हमारे पास जो ये mg है, ये mg साइन थीटा नहीं होगा, बिकॉज नाउ जो एक्चुअल आपके कंपोनेंट है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका अपना mg तो था ही बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी की वजह से, बट
रॉकेट के 2g एक्सेलरेशन ऊपर जाने की वजह से इस पे 2 mg एडिशनल फोर्स लग गया, तो अब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है 3 mg। सो यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा 3 mg साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन एन, ये हो जाएगा 3 mg कोस थीटा और यहाँ पे होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब अगर आप बैलेंस करें, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू 3 mg साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स एन, और एन क्या है 3 mg कोस थीटा। 3 mg cos theta is equal to 3 mg sin theta. So 3 mg get cancelled और mu की वैल्यू आ जाती है sin by cos is equal to tangent theta as usual. So यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2g एक्सेलरेशन से जाओ या 3g एक्सेलरेशन से जाओ या 5g से जाओ, mu की वैल्यू ऑलवेज tangent theta ही रहेगी for non slipping. Now next question की तरफ बढ़ते हैं। Given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton. So जो A है उसका वेट 20 न्यूटन गिवन है और B का 100 न्यूटन गिवन है। They are being pressed against a force by wall F as shown. यहाँ से एक फोर्स लगाया जा रहा है F. If the coefficient of friction between the blocks is 0.1 and the block B and the wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on the block B is. तो हमें जस्ट ये बताना है कि जो ब्लॉक है वॉल है वो बी ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। सो अगर हम यहाँ पे इसका बेसिक डायग्राम बनाएं, सो सपोज दिस इज वॉल और हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है और यहाँ से हमने फोर्स लगाया। तो ये फोर्स इस पे लगाया तो जो दीवार है ये एक फोर्स इस पे लगाएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन, और ये अपोजिट इस पे लगाएगा और ऐसे ही यहाँ पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। सिमिलरली जो ये ए है इसका वेट डाउनवर्ड होगा, दोट विल बी 20 न्यूटन, और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा ए और बी के बीच में जो इसको ऊपर की तरफ लग रहा होगा। सो इसको आप बोल सकते हैं F1। सिमिलरली जो बी है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और बी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स दीवार की वजह से F2 ऊपर की तरफ लगेगा और ये जो F1 ऊपर लग रहा है ए की तरफ, ये F1 यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन इंडिविजुअली, हम इंडिविजुअली बना के दिखाते हैं आपको कि अगर हम ओनली ए की बात करें, ये ए है, इस पे यहां से फोर्स लग रहा है और यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। इसका वेट 20 न्यूटन डाउनवर्ड है और जो इसको बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे F1 है। अगर बी की बात करें तो एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे यहां से लग रही है और एक N2 बोल सकते हो आप दीवार की तरफ से लग रही है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ए पे अप लग रहा था, बी पे यही फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा F1। इसका मास mg डाउनवर्ड होगा, दैट इज 100 न्यूटन, और ये जो वॉल है वॉल की वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, दैट विल बी F2। तो ये बताना है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक 2। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, अगर ये पूरा सिस्टम बैलेंस है, अगर पूरा सिस्टम बैलेंस है तो ब्लॉक ए के लिए जो F हो है वो N के इक्वल होना चाहिए एंड जो F1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए 20 न्यूटन के। तो F1 की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। और अगर ब्लॉक बी के लिए हम देखते हैं तो N इज इक्वल टू N2 होना चाहिए बिकॉज सिस्टम बैलेंस है एंड F2 शुड बी इक्वल टू F1 प्लस mg और mg है 100 न्यूटन और F1 की वैल्यू 20 न्यूटन है। सो 20 प्लस 100 it will be 120 Newton frictional force on block 2. So option
ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m 10 kg at rest on a horizontal table. The coefficient of friction between the block and the table is 0.5. When hit by a bullet of mass 50 gram moving with the speed v that gets embedded in it, the block moves and come to stop after moving a distance 2 meter on the table. If a freely falling object were to require speed v by 100 v by 10 after being dropped from height h, the neglecting the laws taking g the value of h close to. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है और नीचे कोफिशिएंट फ्रिक्शन गिवन है, उसको एक बुलेट से स्ट्राइक किया जाता है और बुलेट उसके अंदर ही रहती है। तो जो ब्लॉक है कुछ देर तक मूव करता है और फिर 2 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। तो पहले हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट किया और फिर वो वेलोसिटी का यूज हमें इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में करना है, जो यहाँ से इट इज ए फ्रीली फॉलिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। सो मास है 10 kg ब्लॉक का और इसके अंदर 50 ग्राम की बुलेट आती है, तो हम बुलेट के मास को इग्नोर करते हैं। इसके अपोजिट फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स mg। म्यू की वैल्यू है 0.05 और 5/100, मास है 10 और g है 10। सो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा, a ड्यू टू फ्रिक्शन, रिटार्डेशन बोल सकते हो आप इसको, 5 बाय मास 5/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव होगा। वाई नेगेटिव? बिकॉज जो आपका मोशन है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नाउ अब जो बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी v है। जो बुलेट की वेलोसिटी v है, जब इससे बुलेट टकराएगी तो वो अपना मोमेंटम इसको देगी। और यहाँ पे हम एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व कर रहे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन लग रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ पे एनर्जी वाला मेथड यूज नहीं कर रहे, हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रिक्शन का यूज कर रहे हैं, तो सॉरी मोमेंटम का यूज कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए जो बुलेट है, बुलेट का मास mb है, v बुलेट की वेलोसिटी है, और फ्रॉम हेयर जब दोनों एक साथ मूव करेंगे तो m मास है ब्लॉक का, m प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है mb वेलोसिटी ऑफ v बाय mb। और अब हमें ये पता है कि मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम। 50 ग्राम को लिखा जा सकता है 0.05 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इसको हम नॉर्मली 10 ही लिखते हैं, बिकॉज 10 प्लस 0.05 ये 10.05 होगा, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो जो ब्लॉक है वो इस वेलोसिटी से मूव करता है और कितने ड्यूरेशन तक मूव करता है, 2 मीटर तक मूव करता है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, दैट फाइनली ब्लॉक जो है रेस्ट पे आ गया है। सो वी कैन राइट, ये है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो 0 माइनस 0.05 बाय 10 vb होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं -5/10 इंटू डिस्टेंस जो कि है हमारे पास 2 मीटर। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5/100 और 5/1000 हो जाएगा, या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट 5/1000 इंटू vb होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
ये 5 इंटू 10 2 ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, और यहाँ पे आएगा 2। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं 200 पे, और इस साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो दैट हमारे पास आएगा VB बाई 200 इज इक्वल टू √2, और यहाँ से VB आ जाता है 200 √2। तो ये आ जाती है बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। अब ये बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हाइट से फॉल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है v/10, और उसको h हाइट से ड्रॉप किया गया, और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v/10 जब वो ग्राउंड को टच करने वाला हो। तो v/10 का मीनिंग होगा कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 20 √2, और यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट हो जाएगी v²/2g, सो 20 × 20 × 2/2 × 10, so it will be 40 मीटर, और इसको आप लिख सकते हो 0.04 किलोमीटर। एंड ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया कि हमने एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कंजर्व आप नहीं रख पाएंगे। सो दैट्स व्हाई हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। A block of mass m is placed on a surface with a vertical cross section given by y is equal to x³/6. Coefficient of friction given is 0.5. Mu equal. Maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. So आपके पास ऐसे कोई पैराबोलिक पाथ आप बोल सकते हो, पैराबोलिक या किसी और शेप में, इस शेप का आपके पास कोई पाथ है, और उसको गिवन उसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू x³/6। अब सपोज कीजिए ये इस पॉइंट पे जाके जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ स्लिप होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें यही बताना है कि वो कितनी हाइट तक मैक्स विदाउट स्लिप हुए रह सकता है। सो सपोज ये हमारा ओरिजिन है, एंड लेट मी ड्रा सम थिकर लाइंस। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे क्या देता है, स्लोप। और अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, तो ये हमारे पास एक टाइप का इंक्लाइन बन जाता है, और उस इंक्लाइन का इंक्लिनेशन है एंगल थीटा। सो फॉर दिस इंक्लाइन, अगर ये इंक्लाइन एक रफ इंक्लाइन है जो कि यहाँ पे गिवन है, बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो ये पूरा का पूरा जो रेड कर्व है ये एक रफ सरफेस है। तो सिमिलरली हम ये मान सकते हैं कि जो ये इंक्लाइन बन रहा है, ये इंक्लाइन भी क्या है, एक रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस पे विदाउट स्लिप होने की, स्लिप ना होने की कंडीशन क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और जो टेंजेंट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप के। तो अगर हम इस कर्व का स्लोप निकाल लें और उसको म्यू के इक्वल पुट कर दें, देन वी आर सॉर्टेड आउट। सो y इज इक्वल टू x³/6 गिवन है, तो यहाँ से हम dy कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल बी 3x² dx/6, सो इट विल बी हाफ, और dy/dx इज इक्वल टू x²/2, और x²/2 किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, म्यू के, और म्यू की वैल्यू है 0.5 यानी कि हाफ। तो यहाँ से आ जाता है आपके पास x² इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। तो ये तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालें तो इसमें x को 1 पुट कर देंगे, सो y आ जाएगा 1/6 मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
consider a cylinder of mass resting on a rough horizontal rug that is pulled out from it with acceleration a perpendicular to acceleration of cylinder. What is frictional force at point p? इस पॉइंट पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताना है. assume cylinder do not slip. अगर यहाँ पे ये मेंशन है कि सिलेंडर स्लिप नहीं हो रहा, तो किस टाइप का मोशन है? रोलिंग मोशन, और उसमें भी आप बोल सकते हो कि प्योर रोलिंग मोशन है. तो इस टाइप के मोशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू गिवन होती है. अगर आपके पास लेट मी एक्सप्लेन, आपके पास एक सिलेंडर है और आपने इसको एक प्लेन पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, और ये रफ प्लेन है और आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो F. ये आपने फोर्स F अप्लाई किया तो ये ऐसे रोटेशन लेगा, तो उसकी वजह से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. बिकॉज जो आपका ये लोअर पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो जो आपका B पॉइंट है वो पीछे की तरफ मोशन कर रहा होगा, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो इफ दिस इज F एंड दिस इज F ऑफ R, तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क होगी, टॉर्क विल बी F माइनस F ऑफ R इंटू, ये हम ओरिजिन के अराउंड निकाल रहे हैं, O के अराउंड, तो इंटू रेडियस. एंड आल्सो इस सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन होगा, दैट विल बी F प्लस F ऑफ R बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. और टॉर्क के लिए एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज I अल्फा. एंड फ्रॉम दिस we can find out that F, हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, F माइनस F ऑफ R इंटू R, और ये हमारे पास क्या है, ये हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे लेट मी चेक सिलेंडर, तो हम इसको सॉलिड सिलेंडर लेके ही सोल्व करते हैं. सो इट विल बी हाफ mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और प्योर रोलिंग है तो अल्फा हो जाएगा A बाय R. सो सोल्विंग फ्रॉम हेयर, ये स्क्वायर कैंसिल कर देगा और ये R को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा F माइनस F ऑफ R इज इक्वल टू MA, और यहाँ से हमारे पास आता है MA इज इक्वल टू F प्लस F ऑफ R. सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं बिकॉज हमें FR की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ से FR की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी माइनस करते हैं, F प्लस FR माइनस F प्लस FR इज इक्वल टू 2MA, और सो F ऑफ R आ जाता है MA के इक्वल. तो यहाँ पे 2MA नहीं आएगा, MA माइनस MA था तो ये 0 आएगा. तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता है 0. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें, हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, तो मीन्स ये जो मोशन है ये प्योर रोलिंग मोशन नहीं है, ये ओनली हमारे पास क्या है, ओनली है रोलिंग मोशन. और इस टाइप के मोशन में क्या होता है, इस टाइप के मोशन में आपके पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, जब आपने थ्योरी कवर की होगी तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आती है mr स्क्वायर माइनस I बाय mr स्क्वायर प्लस I इंटू अप्लाइड फोर्स. यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क है, ये डिस्क की बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है, सॉलिड सिलेंडर है, तो I की वैल्यू हो जाएगी हाफ mr स्क्वायर. सो जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम माइनस करते हैं, सो इट विल बी mr स्क्वायर माइनस हाफ mr स्क्वायर बाय mr स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर इंटू F, और यहाँ से आ जाता है ये हाफ mr स्क्वायर बाय 3/2 mr स्क्वायर इंटू F, सो इट कम्स F बाय 3. और फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन. सो
ma/3। विद दिस जो हमारा आंसर है वो आता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, heavy box is dragged along a rough horizontal floor. To do, a person pushes it at angle 30 degree from the horizontal and requires minimum force Fa, while person B pulls the box at an angle 60 degree from the horizontal and needs minimum force Fb. Coefficient of friction between the box and the floor, ये वैल्यू गिवन है। तो फोर्सेस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम पुश वाला जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। So let us do it. Let us take empty. सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है और उस पर 30 डिग्री एंगल पे पुशिंग फोर्स लगाया गया और पुशिंग फोर्स जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। सो जो यहाँ पे फोर्स होगा वो ऐसे डाउनवर्ड लगाया गया है और हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल है जो 30 डिग्री है। यहाँ पे जो मास है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा एज यूजुअल, mg डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। नाउ बिकॉज जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री हमें मेंशन है, तो अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालें, इस फोर्स को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऐसे जाएगा और सेकंड कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड होगा और डिपेंडिंग अपॉन ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सो जो फोर्स की वैल्यू है वो अगर उसको Fa बोला जा रहा है, सो दिस कंपोनेंट विल बी Fa cos 30 और दिस कंपोनेंट विल बी Fa sin 30. This component will be mg and this component is n. और बिकॉज ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी गिवन है। तो जो फ्रिक्शन है हम ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं कि फ्रिक्शन कुछ ऐसे लग रहा होगा। सो दिस विल बी एफ ऑफ आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगी एन, इट शुड बी इक्वल टू Fa sin 30 प्लस mg। सो Fa sin 30 हो जाएगा F/2 प्लस mg और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा F of R is mu times n or it will be mu times F/2 प्लस mg। और बिकॉज ये बोला गया कि Fa मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है इसको मूव करने के लिए, सो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज Fa cos 30 यानी कि Fa √3/2 should be equal to this whole, so it will be mu mg plus mu Fa by 2। तो यहां से हम Fa की वैल्यू निकाल सकते हैं। Fa आएगा यहाँ से, दोनों से को एक साइड में ले लेते हैं। सो Fa by 2 भी कॉमन आ सकता है। इट विल बी √3 माइनस म्यू इक्वल्स टू म्यू mg और यहाँ से F of A इज इक्वल टू 2 म्यू mg बाय √3 माइनस म्यू। तो ये आ गई हमारे पास पुशिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू जो इस ऑब्जेक्ट को मोशन देगी। नाउ अब हम करते हैं पुलिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स लग रहा है 60 डिग्री पे और हमने म्यू की वैल्यू अभी नहीं पुट की, हम म्यू की वैल्यू को बाद में जब रेशियो निकालेंगे तब पुट करेंगे बिकॉज हमें दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है। सो अगेन हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री के रिस्पेक्ट पे हमारा फोर्स लग रहा है
जिसको हमने बोला एफ बी। इसके हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएगा। साथ में हमारे पास जो एम जी है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास होगा फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये हो गया एफ बी। हॉरिजॉन्टल का एंगल साथ ये 60 डिग्री गिवन है, सो दिस विल बी एफ बी cos 60 and this will be fb sin 60. This is normal reaction, this is mg and this is frictional force. So अब अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें तो जो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ बी साइन 60 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाती है एम जी माइनस एफ बी √3/2, और इससे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स एन। सो म्यू एम जी माइनस एफ बी √3/2। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल एटलीस्ट एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए। सो एफ बी cos 60 यानी कि एफ बी बाई 2 should be equal to mu times mg minus mu fb √3/2। यहाँ से एफ बी को एक साइड लाके हम कॉमन कर सकते हैं, एफ बी बाई 2 इंटू 1 प्लस √3 म्यू इज इक्वल टू म्यू एम जी, और यहाँ से एफ बी कम्स आउट टू बी 2 म्यू एम जी बाय 1 प्लस √3 म्यू। अब हम कंपेयर करते हैं और हमें रेशियो निकालना है एफ ए बाय एफ बी का, और म्यू की वैल्यू है √3/5। सो म्यू इज √3/5 और हमें एफ ए बाय एफ बी कैलकुलेट करना है। तो जब हम ये करेंगे, जब आप ए बाय बी करोगे तो जो ये वाली टर्म है दोनों में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ओनली ये टर्म्स बचेंगे। सो इट विल बी √3 म्यू प्लस 1 बाय √3 माइनस म्यू, और यहाँ पे हम अब म्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, प्लस 1 डिवाइड √3/5। So it will be 3/5 plus 1, and इसका एलसीएम ले लेते हैं तो इट विल बी 5√3 माइनस √3/5। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8/5। ये इसको आप सोल्व करोगे 5/4√3। सो 5 से 5 कैंसल, इट विल बी 2/√3। नाउ आंसर को कंपेयर करते हैं। सो ऑप्शन जो डी है वो मैच करता है हमारे आंसर से। सो दिस विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A small ball of mass m starts at a point A with speed v naught and moves along a frictionless track AB. तो A से B तक कोई फ्रिक्शन नहीं है। The track BC has a coefficient of friction mu. The ball comes to stop C after traveling a distance L, which is, तो L की वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे हम इजिली जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो यूज कर सकते हैं। जब बॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके पास स्पीड है v नोट, मींस उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ एम वी नोट स्क्वायर, और साथ में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है एम जी एच, जो एच की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो जब यहाँ पे बॉल यहाँ पे पहुंचती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और उसके पास ओनली बचती है वेलोसिटी, तो हम उसको बोल देते हैं वी स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू half mv node square plus mgh. From here we will get v square is equal to
वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेलोसिटी की। नाउ अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू टाइम्स। तो सपोज कीजिए ये बॉल है हमारे यहाँ पे, तो बॉल का मास नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। तो जो बॉल पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल बी म्यू टाइम्स mg, और वो कहाँ पे लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा मोशन के। सो सपोज ये टोटल l डिस्टेंस चलती है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा, इट विल बी म्यू टाइम्स mg इंटू l। और ये वर्क क्या है, ये वर्क है, सो वर्क शुड बी इक्वल टू एनर्जी, और बॉल की काइनेटिक एनर्जी के ये इक्वल होना चाहिए। बॉल की बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये रही हमारे पास। सो वी नोट स्क्वायर प्लस 2GH इक्वल टू म्यू टाइम्स जी इंटू एल। सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वी कैन फाइंड आउट दैट एल इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस 2GH बाय 2 म्यू जी। और इसको आप सेपरेट आउट करके लिख सकते हो लाइक वी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू जी प्लस 2 से 2 कैंसल, जी से जी कैंसल, सो h बाय म्यू। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको कब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है या कब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो अगर आपके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या पूरा सिस्टम एज ए सिंगल मोशन ले रहा है, तो आप वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ कोलिजन होके या कोई भी फिनोमिना होने के बाद जो आपका सिस्टम है वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में चला जा रहा है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन वहाँ पे मत ट्राई कीजिए, आप वहाँ पे ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन ट्राई करें। मीन्स अगर आपके पास सिंगल सिस्टम रहता है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिंगल सिस्टम नहीं है तो आप ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 4 kg placed on another block B of mass 5 kg and the block B rest on a smooth horizontal table। so smooth horizontal table है यानी कि ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, so ground is plane। so suppose ये हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और इसके ऊपर एक और दूसरा ब्लॉक है दैट इज ए ब्लॉक। ये हमने गलत कलर चूज कर लिया इसके लिए। सो ओके, ये हमारा हो गया ए ब्लॉक और ये हो गया बी ब्लॉक, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं। इफ द मिनिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ए सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर इज 12 न्यूटन। मींस ए पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो है 12 न्यूटन, और ये इतना है सफिशिएंटली दैट दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ मूव करें। तो अब हमें ये बताना है कि बी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएं कि दोनों एक साथ मूव करें। बी ब्लॉक पे मिनिमम कितना फोर्स लग सके कि दोनों एक साथ मूव करें। सो टू अंडरस्टैंड दिस, तो हम ए ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं सो दैट हम आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाए चीजों को। नाउ जब आप ए ब्लॉक पे आप 12 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होगा। अब बिकॉज ए ब्लॉक आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो बैकवर्ड लगेगा, और सेम फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा। सो इफ ए ब्लॉक के सिनेरियो में अगर आपका अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं है, तो दोनों ये ए ब्लॉक इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा, और आपका अप्लाइड फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स पे एक साथ वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि 12 न्यूटन फोर्स लगाने पे ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करते हैं, और ये तो यहां से हम अगर एक्सेलरेशन निकालें इस सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अप्लाइड दैट इज 12
by total mass, that is 4 plus 3, sorry 4 plus 5, so 12 by 9, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपने 12 न्यूटन फोर्स लगाया तो सिस्टम का ये एक्सेलरेशन है। नाउ एज पर स्टेटमेंट ये बोला गया है कि एक पे ये मिनिमम फोर्स है 12 न्यूटन का, जिससे ये ब्लॉक मूव नहीं करता। अगर आप 12 न्यूटन से ज्यादा जाओगे तो ये ब्लॉक बी के ऊपर स्लिप करने लग जाएगा। मींस जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है एफ ए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12 न्यूटन। मींस मैक्सिमम फ्रिक्शनल अगर 12 न्यूटन का है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है, उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं हो सकता। नाउ अगर फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है तो सपोज कीजिए आप पूरे सिस्टम को एक ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाते हो। लेट मी शो यू सेपरेटली कि आपके पास ये स्मूथ सरफेस है, ये बी है और ये ए है। अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं और मैं इन दोनों को ना ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ाता हूं तो क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट ए है या ब्लॉक ए है इस पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, दैट विल बी एम ए इंटू एक्सेलरेशन। और अगर ये आपका फोर्स, बिकॉज इस पे बैकवर्ड फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। तो अगर ये आपका बैकवर्ड फोर्स इस फ्रिक्शन के इक्वल है तो ये इसके ऊपर स्लिप नहीं करने वाला। तो हम यहाँ से ये फॉरवर्ड एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो हमें ये पता है कि फ्रिक्शनल 12 है जो मैक्स एक्ट कर सकता है। मास ऑफ ए हमें गिवन है, दैट इज 4 kg इंटू जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है कंप्लीट सिस्टम के लिए जब पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन पॉसिबल है, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से एक साथ चल सकता है। अगर पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से एक साथ चल सकता है तो पूरे सिस्टम पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जा सकता है, फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। कंबाइंड मास है 9 इंटू मैक्स एक्सेलरेशन 3, दैट इज 27 न्यूटन। और अगर आप यहाँ पे भी देखते हो कि जब हमने 12 न्यूटन ओनली फोर्स लगाया था तो हमारा एक्सेलरेशन 4/3 था, जो कि इस 3 से लेस है, जो कि मैक्स अलाउड एक्सेलरेशन है। सो इसका आंसर हो जाएगा 27 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। A block is placed on a rough horizontal plane at time, I think what is a time dependent force given है F is equal to KT act on the block where K is positive constant। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें बताना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे ये गिवन है कि जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है यानी कि फोर्स इज इक्वल टू KT हमें गिवन है, और फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। सो इट विल बी KT, एक्सेलरेशन इज K बाय M इंटू T। और यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं हमें, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली मास टाइम एक्सेलरेशन, फोर्स में कोई मास एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव नहीं आता। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसके हमारे पास ओनली 2 ऑप्शन है यहाँ से, या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन बी है। तो इन दोनों ऑप्शंस में हमें चूज करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा। नाउ उसके लिए हमें हिंट लेना होगा यहाँ से कि ये बोला गया है कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो स्टार्टिंग में तो जो अप्लाइड फोर्स है आपका, वो जब तक फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल नहीं होता तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। मींस आपका टाइम इंक्रीज होगा, टाइम के साथ फोर्स भी इंक्रीज होगा, बट जब तक ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी कि कुछ टाइम के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आप ये देखते हो अगर ये बी ग्राफ है, यहाँ पे कुछ टाइम तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है और फिर सडनली एक्सेलरेशन आता है। ये सडन एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, बिकॉज जो स्टार्टिंग में आपका म्यू स्टैटिक होता है और फिर म्यू काइनेटिक होता है। तो म्यू काइनेटिक म्यू स्टैटिक से थोड़ा सा लेस होता है। तो जब आप स्टैटिक से काइनेटिक में शिफ्ट होते हो तो सडनली जो फोर्स है वो इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक सडन जंप आएगा एक्सेलरेशन का। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
A body starts from rest on a long inclined plane of slope 45 degree. Coefficient of friction between body and plane ये given है 0.3x, where x is a distance traveled down the plane. The body will have maximum speed when x, ये बताना है कि बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और कब होगी, उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगेन प्लेन बनाते हैं. सपोज ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ. नाउ एज यूजुअल mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ये एंगल 45 है तो ये एंगल ये हो जाएगा mg cos sin 45 यानी कि mg बाय √2. और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा Fr, और फ्रिक्शनल फोर्स में हमें म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि x के टर्म्स में. सो F ऑफ R हो जाएगा म्यू टाइम्स n होता है और n यहाँ पे होगा mg√2 के इक्वल, बिकॉज n इसको बैलेंस करेगा. सो इट विल बी म्यू की वैल्यू है 0.3x और n की वैल्यू हो जाएगी mg बाय √2. नाउ जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड इट विल बी हो जाएगा mg√2 माइनस 0.3x mg बाय √2 और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ से g बाय √2 भी हम कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा m से तो हमने डिवाइड कर दिया, सो इट विल बी 1 माइनस 0.3x. तो ये हो जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. नाउ ये पूछा गया है कि हमें वो डिस्टेंस की वैल्यू बतानी है जब बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, कि बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कब, जिस टाइम पे बॉडी की मैक्सिमम स्पीड होगी हमें वो वैल्यू के लिए x की वैल्यू, उस टाइम के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो इसके लिए हम पहले इस जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं. ओनली देन आप इसको सोल्व कर पाओगे अंडरस्टैंडेबली. तो जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 0.3x, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो आपके पास ये एक्सेलरेशन है जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू g बाय √2 1 माइनस 0.3x. तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी 0.3 वाली टर्म की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड होता जाएगा, बट स्टिल पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. मींस अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ प्लॉट करोगे तो लगभग ऐसे आएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है पर धीरे धीरे कम हो रहा है टाइम के साथ. ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है. एक्सेलरेशन आपका धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, या आप इसको एज ए डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर सकते हो a वर्सेस x. स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम थी जब ये 0 था, जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है. एक टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी की वेलोसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अब बॉडी पे अपोजिट फोर्स लग रहा है. तो जब बॉडी पे अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, ये मींस अपोजिट वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा mg बाय √2 से, तो बॉडी की वेलोसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी और बॉडी स्लो डाउन हो जाएगी और रुक जाएगी. मींस बॉडी की वेलोसिटी कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक ये आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जाता, तब तक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और उसके बाद बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. सो इन दिस सिनेरियो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को 0 इक्वल करना होगा. सो g बाय √2 1 माइनस 0.3x इक्वल टू 0, और यहाँ से वी कैन राइट दैट 1 माइनस 3 बाय 10x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10 बाय 3 मीटर. तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. और इसको आप एक और एनालॉजी से सोल्व कर सकते हो, वो थोड़ा सिंपल है बट शॉर्टकट है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग इतना डेवलप नहीं होगी कि
हमारे पास होता है नॉन स्लिप के लिए कि बॉडी स्लिप ना करे, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। यहाँ पे टेंजेंट 45 है और म्यू की वैल्यू 0.3x है। टेंजेंट 45 1 होता है तो x आ जाएगा 1/0.3 और इसको आप 10/√3 लिख सकते हो। नॉन स्लिप का मीनिंग होता है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हो, बट इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया। यहाँ पे जस्ट आप ये शॉर्टकट है सोल्व करने का, बट वाया दिस मेथड जो हमने स्टार्टिंग में सोल्व किया, इससे आप कंसेप्ट भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 10/√3 आया तो आया कैसे, और ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। So in this scenario, a block of weight W rests on a horizontal floor with coefficient of static friction is mu. It is desired to make the block move by applying minimum amount of force. The angle theta with horizontal at which force should be applied and the magnitude of the force respectively. So आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है जहां पे फ्रिक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द डायग्राम। ये हमारे पास एक फ्लोर हो गया, एक ब्लॉक है, उस पे विद हॉरिजॉन्टल हमें फोर्स लगाना है। सो सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पे हम एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स F। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इट विल बी F cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। ये थीटा है और ये हो गया F cos थीटा। नाउ सिमिलरली इसका वेट गिवन है W, तो वेट W नीचे की तरफ होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पे बिकॉज ये फ्रिक्शन भी लग रहा है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, दैट इज F ऑफ R। सो पहले नॉर्मल रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग करते हैं। सो N प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू W, और यहाँ से N की वैल्यू आ जाती है W माइनस F साइन थीटा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से उससे बन जाएगा, दैट विल बी म्यू टाइम्स N और म्यू टाइम्स W माइनस F साइन थीटा। सो नाउ एज पर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए और हमें मिनिमम फोर्स लगाना है। फोर्स भी मिनिमम लगाना है और उसके लिए हमें एंगल भी एडजस्ट करना है रिस्पेक्टिवली। सो एज पर दिस स्टेटमेंट जो F ऑफ cos थीटा है, F ऑफ cos थीटा है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के, यानी कि म्यू W F साइन थीटा के। अब हम इसको इक्वालिटी में सोल्व करते हैं और जब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी फोर्स की। सो F ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू म्यू W माइनस म्यू F साइन थीटा। आप इसको इस साइड में ले आएंगे, F कॉमन लेंगे, सो इट विल बी cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू W, और यहाँ से फोर्स आ जाता है म्यू W cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। बिकॉज फोर्स यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए एज पर स्टेटमेंट, और थीटा भी हमें एडजस्ट करना है, तो व्हाट वी डू, हम फोर्स को मिनिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो कैसे किया जाता है, यूजिंग डेरिवेटिव्स। सो उसके लिए जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, डिनोमिनेटर वाला कंपोनेंट है, अगर फोर्स को मिनिमम रखना है तो जो डिनोमिनेटर वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। मींस हमें थीटा की ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी सो दैट ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाए। तो हम सपोज इसको बोल देते हैं जेड,
z इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और हमारा टारगेट क्या है कि हम z को मैक्सिमाइज कर दें सो दैट फोर्स मिनिमाइज हो जाए और एज पर दिस कंडीशन मोशन भी हो जाए। तो z को मैक्सिमाइज करना है और इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा, तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं dz by d थीटा। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा। और यहाँ से जब आपको पॉइंट निकालना होता है मैक्सिमम मिनिमा का तो आप इसको जीरो के इक्वल पुट करते हो। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू ऑफ कोस थीटा एंड यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट थीटा के इक्वल। नाउ आपके पास पॉइंट तो आ गया म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मीन्स इस पॉइंट पे ये फंक्शन या तो मैक्सिमा हो सकता है मिनिमा हो सकता है, ये हमें अभी नहीं पता। तो वो चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लिया जाता है। सो इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी माइनस कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो इट विल बी माइनस कोस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। तो ये नेगेटिव ही रहने वाला है, मीन्स अगर ये नेगेटिव रहने वाला है तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है कि इस वैल्यू पे जो z है वो मैक्सिमा होगा और z अगर मैक्सिमा होगा तो फोर्स मिनिमाइज हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू मिनिमम रहेगी। सो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स थीटा और सॉरी टेंजेंट थीटा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और जो फोर्स है फोर्स में हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे म्यू की जगह पे। सो फोर्स विल बी म्यू डब्ल्यू cos theta plus tangent theta is sin theta by cos theta into sin theta। तो अभी आप यहाँ पे जाके स्टक हो जाएंगे कि अब sin theta और cos theta को कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू है, तो ये साइड को परपेंडिकुलर को म्यू होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा। और जो ये वाली साइड है इट विल बी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर और जो कोस ऑफ थीटा है इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इन वैल्यूज को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू डब्ल्यू कोस थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 बाय म्यू स्क्वायर एंड ये तो हमारे पास म्यू ही था तो इसको म्यू ही रखते हैं बिकॉज इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास म्यू था तो इसको हम म्यू ही रखते हैं बिकॉज जो हमारे थीटाज हैं वो भी म्यू की टर्म में आ चुके हैं। प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा, सो साइन इज म्यू बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे सो इट विल बी म्यू डब्ल्यू बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर और ऊपर जाके जो एलसीएम है वो ऊपर आएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर और ये फर्दर सोल्व होके हो जाएगा म्यू डब्ल्यू प्लस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। और अगर हम कंपेयर करें ऊपर जाके तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है और थीटा हमने निकाला था दैट म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स म्यू। सो विद दिस हम आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी 1 आवर लॉन्ग हो चुकी है। एंड होपफुली आपको जो हमारी वीडियो है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आपको अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प मिली होगी। अगर आपके डाउट्स हैं कोई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर देम। एंड आल्सो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड इफ यू कैन do make some donations, it helps us a lot to get new books and a better computer hardware. So with this I end today's session, we will meet in next video. Till then keep on sharing, keep on subscribing and thanks for watching.